गणपति बप्पा for all of us. ये एक प्रोजेक्ट है बहुत दिल से बनाया गया है। सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, बहुत ही पैशनेटली इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में और I'm glad कि आप लोग यहाँ पे हैं हमारा पैशन शेयर करने के लिए। We are here honestly speaking to celebrate the most extravagant marriage Marathi cinema has ever seen. And we are obviously here to make the first look of our film, Sarvamangal Saab. The team is presented by Indian Film Studios, produced by Humble Farmer Entertainment and Wise Entertainment. Suppose एक rearranged marriage करून दिलं तर कसं होतं? म्हणजे marriage already arranged आहे पण त्याला आपण rearrange करू तर त्याला ते कसं वाटेल की हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारायचा प्रयत्न करतो आणि ते तुम्ही मंजिरी की एक पहली मराठी फिल्म है she is making a debut and I hope you all give her all the other support and we are now going to unveil the poster of our film. Now it's time to introduce जो भी हमारे फिल्म के जो पात्र हैं, जो किरदार है और जो लोग इन्वॉल्व हैं हमारे फिल्म में। First and foremost, उत्कर्ष मराठी, played by Churchill. Applause. He is basically he's going to be the man I'll be fighting with. अगर फिल्म में स्ट्रॉन्ग विलन नहीं रहेगा तो हीरो के प्रति उठ के नहीं आएगा तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिस तरीके से हमने वर्कशॉप्स किया आज तक आई थिंक ही इज गोइंग टू शॉक यू गाइस सीरियसली रियल द सेकंड ऑन द लिस्ट इज प्राजक्ता नाइक played by Sneha. Sneha is she's again a very big surprise element of the film. एक hot cop के रूप में आप इन्हें देखेंगे and I think she's going to again surprise you guys with that. There's another very sweet character in our film, my Dadi, the very sweet Dadi played by Mrs. Vandana Mani. My father unfortunately is not here. Mr. Padil played by Vivek Lagu. He is not here unfortunately. We'll get to him soon. फिल्ममध्ये माझ्या कॅरेक्टरचं नाव आहे वृषाली आणि her mama is called Ravi Deshmukh in the film. That's being played by Mr. Ashok Sangvi. Okay, sorry, before I give it over, I have to introduce my mother, Utkarsha Naik ji, please, come on stage. My mommy is being played by Mrs. Ashwini Egbote. इस सबसे बड़ी बात ऑब्वियसली फिल्म जब बनती है तो
उसके बगैर इट्स ऑल इनकम्प्लीट। और मैं प्राउडली इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर राहिल खान। He is the man, guys. एक ऐसा डायरेक्टर मिलना किसी को भी, किसी एक्टर को भी बहुत ही I mean, I really feel blessed to have him as my director because जिस तरीके से वो performance निकालता है हम सबसे, it's something which is I don't have experience it honestly because he himself is a good actor actually. तो एक एक्टर होने के बाद जब फुल एक्सप्रेशन देते हो आप, एक आपको जो चाहिए वो ट्रांसपेरेंटली आप किसी को बता सकते हो कि मेरा ये विजन है, उसके हिसाब से हमें ये सब करना है। So I think the captain of the ship has to be very strong and he's the strongest one. Another person I would like to introduce here is the Pandit of the film. He's जेव्हा मी ऐकली स्टोरी पहिल्यांदा तेव्हा मला वाटलं की ही फिल्म आहे जी मला करायचीच आहे, काही नव्हतं. Come on, Pandit ji, please stage पर आइए. फिल्म मेरी अकेले की है और ये नहीं होते तो ये मैं नहीं लिख पाता। जिन्होंने पैसा डाला है फिल्म को उनको बुलाना ही पड़ेगा भाई। तो ललित, प्रियांक, एंड उत्पल जी, आशीष, कौन है? स्टेज पर गया रे। Okay, thank you guys for believing in us and making it happen. It's a dream for all of us. And thank you so much. And you will rock it. मजा आने वाला है। मैं एक और एक किरदार को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मेरी छोटी बहन है। पूरा प्लीज आए। सॉरी हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे बिकॉज़ हम कल से कुछ शूट करने वाले हैं। तो आई थिंक जब आप लास्ट दिन आओगे तो आई थिंक वी विल ऑल इंट्रोड्यूस ईच अदर। So here's the team, and last in, I mean, it's not the end of the game out here. Nikhil Kamath. इनका म्यूजिक था and it was a super duper great success. The musical season and good. इन्होंने जो साउंड ट्रैक दिया है उस जो मैं आज हूँ इनकी वजह से, तो he is back in my life and we will rock the show. I'm very happy when in front of the Rakesh is in the movie. I told Abhishek I'm doing this movie, I don't want to hear anything. Because we've done 4-5 projects together. It's always been successful. And it's great working with Rakesh. Thank you very much. lyrics मेरे को नहीं था कि कोई और नहीं सकता। Thank you. We need all your blessings. हम एक तांगा मोटर शुरुआत करना चालू है। एक खूब सुंदर प्रोजेक्ट है, एक मनापसंद मनोरंजन प्रोजेक्ट है। So we need all your blessings and your support, and we promise you that we will give you the best of product there. Thank you so much for being here. अरे सॉरी ये है हमारी मगनलाल ड्रेस वाला केटी दलाल। आई थिंक मैं आज इस प्रोजेक्ट में इनकी वजह से हूँ बिकॉज केटी और मैं बहुत लॉन्गे रहा, बहुत हमने फिल्में की एक साथ, शी डिजाइन को भी एंड उन्होंने मुझे फोन किया, शी सेड किया अरे यार तुम्हारा कोई कर ऑलरेडी लोग वी वांट टू लुक अप, वी आर लुकिंग आउट फॉर अ हीरो, सो आई वांट आज मैं इस फिल्म में उनकी वजह से honestly thank you guys for coming here. Please, I hope you have a great evening and enjoy yourself. I'll see you around.
पार्टी दिसत नाही पार्टी एक मिनिट समोर इकडे एक मिनिट छोटा ग्रुप आगे का एक मिनिट सर्व इकडे एक मिनिट इकडे सेंटर झालं की मागे चेंज कर समोर माझ्याकडे इकडे समोर आहे थोड़ा चेंज कर समोर इकडे थोडे मागे सर थोडे दोनों यहाँ पर सामने सामने कैप्टन सामने म्यूजिक डायरेक्टर से इनवाइट कर लिया। मंदिर आपका और राकेश का साथ होगा। राकेश सर माझी सर एजेंसियाँ हैं, अभी आप हिंदी न्यूज़ पे भी पहुँचे, अभी तो सब मराठी वाले कर रहे हैं। चलो मराठी है ना? नहीं हिंदी, ये हिंदी है। ये हिंदी तो हिंदी में बोलेंगे ना? हाँ सर हिंदी।
राकेश सर, हिंद बड़ा गहरा रिश्ता रहा है आपका इंडस्ट्री से, बहुत काफ़ी समय से आप हैं, ये बताइए इस फिल्म के बारे में। फिल्म शादी के ऊपर है, इट्स कॉल्ड सर्वमंगल सावधान। और जब शादी की बात होती है तो बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे गाने दिखाई देते हैं, बहुत सारे एंटरटेनिंग एलिमेंट्स दिखाई देते हैं हमें, फैमिली इवेंट्स होते हैं और हमेशा हम शादी तो एंजॉय करते ही हैं। तो फिल्म में भी वही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। और स्क्रिप्ट जो है फिल्म की बहुत कमाल की है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही मतलब जब एक एक्टर के लिए एक बहुत कमाल का प्रोजेक्ट हमारे सामने आया है और अगर आया तो वी फील ब्लेस्ड अबाउट इट। टीम बहुत कमाल की है, एक यूनिट जो कहते हैं कि जो एक फिल्म के लिए ज़रूरी होता है वो सब है इस फिल्म में। हमारे प्रोड्यूसर से लेके, डायरेक्टर से लेके, स्क्रिप्ट राइटर से लेके, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग से लेके सब कोई, एवरीबडी इज़ एक्सट्रीमली इनटू द प्रोजेक्ट और बहुत पॉजिटिव है। और आप फिल्म देखोगे तब आप वो पॉजिटिविटी आप समझ जाओगे क्या मैं जो कह रहा हूँ। जब पूरी यूनिट इतनी अच्छी होती है, सब लोग इतनी मस्ती करते हैं सेट के ऊपर कि वो जब मस्ती होती है ना सेट पे, व्हेन एवरीबडी सो हैप्पी एंड एंजॉयिंग देमसेल्व्स, वो एकदम कैमरा पे दिख के आता है। सो आई एम श्योर द ऑडियंसेस आर गोइंग टू कैच द एनर्जी एंड गोना एंजॉय द फिल्म अ लॉट। राकेश के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? अभी शुरू कर रहे हैं काम करना, अभी हमने सिर्फ वर्कशॉप्स शुरू किए हैं एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड वी हैव बीन हैविंग अ वेरी गुड टाइम ड्यूरिंग द वर्कशॉप्स। अभी हमने शुरुआत की है वर्कशॉप, एवरीडे हम जैसे हॉलीवुड में होता है वैसे हम यहाँ करने की कोशिश करें कि हम लगे पड़े कि हमारे स्क्रिप्ट्स जो डायलॉग्स जो है हम एक दूसरे के साथ जो केमिस्ट्री हम इस्टेब्लिश करेंगे फिल्म में, वो अभी से हम फाउंडेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मंजरी पहली बार मराठी में फिल्म कर रही है, तो जब उसके डायलॉग जब बोलने की बारी आती है तो हम सब हंस पड़ते हैं बिकॉज शी एंड उसने चैलेंज दिया कि मैं मराठी में मतलब आई विल बी सो कन्विंसिंग, यू ऑल बी सरप्राइज्ड। आई नो मेरी मराठी वैसे अभी अच्छी नहीं है बट फिल्म में एकदम परफेक्ट रहेगी। हाँ, पिट पर पोपट पंची करके आएगी। राकेश, पिछले 5 सालों में बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स, चाहे वो अक्षय कुमार हो, रितेश देशमुख हो, वो लोग मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर बन रहे हैं और मराठी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी फिल्में चल भी रही हैं। क्या कुछ आप वजह बताना चाहेंगे, मतलब क्या शेयर करें? प्रोड्यूसर बन रहे हैं मराठी, ऑब्वियसली बिकॉज मराठी सिनेमा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है अभी। अगर एक फिल्म ऑस्कर तक पहुंच सकती है मराठी सिनेमा, श्वास जो ऑस्कर तक पहुंची थी, तो आई थिंक मराठी सिनेमा इज़ आई मीन रेडिंग टू गो अहेड। एक सब्जेक्ट्स जो होते हैं मराठी फिल्म के, जो सब्सटेंस होता है मराठी फिल्म्स में, वो बहुत कमाल का होता है, रियल होता है। और अभी जॉनर आया कमर्शियल फिल्म्स का, एक्शन का, लव स्टोरीज का, तो वो अभी आई थिंक पीपल आर लाइकिंग। लाइक लय भारी वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर जो अभी रिसेंट टाइम्स में रिलीज़ हुई है, एक जॉनर ही अलग था। तो अभी एवरीबडी इज़ वेकिंग अप टू मराठी सिनेमा और हम फॉर्चुनेट इनफ हम है कि हम करेक्ट टाइम पे हम मराठी सिनेमा में एंटर कर रहे हैं। और ये फिल्म भी मतलब एक फैमिली ऑडियंस व्यूइंग के लिए है, सब लोग जाके देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी अश्लीलता नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पसंद ना आए। बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ़नी है, बहुत कमाल का सब्जेक्ट है ये फिल्म का। आई थिंक राकेश सब कुछ बोल चुके हैं। एज ही सेड कि ये पूरी फिल्म में बहुत ही ज़्यादा मस्ती है एंड कॉमेडी है, रोमांस है। इट्स अ फुल कंप्लीट सिनेमा फॉर अ फैमिली ऑडियंस एंड आई एम श्योर ऑडियंसेस आर गोना लव इट। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहेंगे? मेरे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हिंदी में 2 हैं। एक है वाहताज, वो जल्दी रिलीज़ होगा एंड एक फिल्म मैंने अभी अब्बास मस्तान जी के साथ कंप्लीट की है, कपिल शर्मा के साथ, वो भी अभी आई थिंक अगस्त सितंबर तक शायद रिलीज़ हो जाए। इस फिल्म में बहुत सारे 5 सिचुएशन हैं और एक तो सैड सॉन्ग है जो बहुत अच्छा बन गया, एक डांस नंबर है और एक रेट्रो गाना भी है थर्ड, और 2 गाने भी और सिचुएशन स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे वर्कआउट करना है। लेकिन बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, म्यूज़िकल फिल्म है और एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए एक ऐसी फिल्म है जो वो बहुत बड़े मज़े से कर सकता है। इसलिए मैं बहुत खुश हो गया इस फिल्म इसका स्क्रिप्ट पढ़ के, और 2 गाने ऑलरेडी फाइनल हो गए, इसका ऑलमोस्ट सेमी रिकॉर्डेड है ये गाने। सर, फिल्म तुम बिन का जो गाना था, राकेश जी ने भी बताया अपने सर, वो सुपर हिट गाना था जी। तो सर वहाँ से लेकर के अब तक की जर्नी के बारे में हल्का डिटेल में छोटे में ज़रा बताएंगे? तुम बिन के बाद तो बहुत अच्छा हो रहा, मैं काम करते रहा हूँ, रीजनल भी करता हूँ, हिंदी भी कर रहा हूँ और
बहुत सारे म्यूज़िक को रिलेटेड टेलीविज़न सब में कर रहा हूँ और मुझे आज खुशी है कि राकेश के साथ फिर हम लोग काम कर रहे हैं और फिर वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और बाय गॉड्स ग्रेस जो 2-3 गाने हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं और लोगों को पसंद आएगा म्यूज़िक के साथ। सर सर्वमंगल सावधान, हाँ जी सर क्या इसका क्या मतलब होगा? देखो सर्वमंगल सावधान ये जो पिक्चर है जब शादी होती है ना तो मंगल होता है तो इसको थोड़ा सा सावधान करके थोड़ा सा इसको कॉमेडी कर दिया कि भाई शादी हो रही है लेकिन संभालो। तो ये बेसिकली इसकी जो जिस्ट है कि यूजली जब शादी होती है तो सर्वमंगल बोलते हैं लेकिन सर्वमंगल सावधान। तो यंग जनरेशन की फिल्म है, मैं DDLJ से थोड़ा सा कंपेयर नहीं करूँगा लेकिन उस तरह की पिक्चर है जो एक मैसेज भी दे और लोगों को खुश भी करे और एंटरटेनिंग और इंडियन सब्जेक्ट है बेसिकली जो आजकल जो फिल्म चल रहे हैं तो इंडियन बेस्ड सब्जेक्ट चलता है और म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छा स्कोप है फिल्म के और इसके गाने बहुत अच्छे बने हैं बाय गॉड्स ग्रेस। सर क्या फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है? एक आइटम सॉन्ग है तूतारी तूतारी, तो वो गाना ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं उसके बारे में, बहुत अच्छा गाना है पूरा, उसका बहुत बड़ा सेट बन के बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज करने वाला है। अभी म्यूज़िक ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग बाकी है, बाकी बेसिक ट्रैक सब हो चुके हैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है और जब जैसे तुम बिन आपका जिक्र किया उसकी भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो मुझे फीलिंग है कि ये भी और एक वैसे एक ब्लॉकबस्टर होने वाला है। बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, क्लीन फिल्म है और एक संगीतकार के लिए एक ऐसी फिल्म है कि वो कोई ना नहीं बोलेगा इस फिल्म के। मैं लकी हूँ कि मैं पिक्चर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बस मैं बोलूँगा ये, जब इस फिल्म का भी हुआ था कि मराठी करना है तो ऐसे यार मराठी के जो कंटेंट होते हैं फिल्म के बहुत ही सुपर्ब होते हैं, क्योंकि मैंने जब से भी फिल्म देखी है मराठी भी, जितनी बचपन से भी देखते आ रहा हूँ, मैंने हमेशा नोट किया एक चीज़ कि उनके कॉन्सेप्ट, उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, छोटी छोटी चीज़ भी है ना बहुत प्रॉपरली दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट उनके तो हर कॉन्सेप्ट सही होते हैं उनके। अगर मराठी में कुछ एक लाइन भी बोलनी हो ना तो जब वो बोल के आता है ना एक्टर तो हंसी आती है, वो फील है उसका। पकड़ना है मुझे। सॉरी, किस तरह का किरदार है फिल्म में, आप जरा बताएं। इस टाइप के विलेन है। मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें, जिसका नाम है उत्कर्ष मराठे। ही इज़ बेसिकली नेगेटिव कैरेक्टर, बट ही इज़, ये बोलता बहुत कम है
इसको मोस्टली जब इन लोग ने मुझे कास्ट किया था तो इन लोगों को ऐसा लड़का चाहिए था जो अपनी आंखों से बोले, जो मुंह बहुत कम खोले लेकिन आंखों से बोले। जब वो आंखों से बोले तो सामने वाला मतलब स्टॉप हो जाए वहीं पर, और जब ये बोले तो मतलब समझो कि कुछ होने वाला है, तूफान आने वाला है। अभी जब इन्होंने बोल दिया एंड बेसिकली ही बिलीव्स इन एक्शन। सो आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर उत्कर्ष मराठे, जो अपने फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टेड है। अगर इसके ऊपर कुछ होता तो ही इज़ ओके, वो छोड़ देता है, बट जब इसकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर कुछ होता है तो ही डोंट लीव, ही किसी को छोड़ता नहीं है। फिर तो इस फिल्म में ऐसा कुछ होता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स पे कुछ आ जाता तो फिर मेरा एक्शन वहाँ चालू होता है। किस विलन से आप अपने को जो है कुछ कोई विलन से तो इंस्पायर्ड नहीं है, और ये कैरेक्टर किसी भी विलन से इंस्पायर्ड हुआ भी नहीं है आई गेस। ये कैरेक्टर, और ये बेस्ट पार्ट ये है कि इस फिल्म मराठी फिल्म में अभी तक कुछ सालों से आई गेस विलन्स की फिल्म नहीं आ रही है, विलन्स आ नहीं रहे। ऑल आर्ट काइंड ऑफ सिनेमा, कंसेप्शनल वाइज ऑफ सिनेमा आ रहा है। तो ये बहुत सालों के बाद मराठी इंडस्ट्री में एक विलन आएगा ना, आई गेस ये ऐसा विलन होगा कि लोग एक्चुअली नफरत करेंगे इससे, और विलन वही होता है जो ऑडियंस नफरत करे उससे। तभी अगर एक भी ऑडियंस ने नफरत कर लिया उस विलन से तो सक्सेस हो गया। तो मेरे हिसाब से तो इसमें यंग हो या बच्चे हो या एजेड हो, हर कोई मेरे से नफरत करेगा, वो कैरेक्टर है। एंड इट्स अ बिग चैलेंज, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग। बिकॉज क्या होता है जब आप डायलॉग बोलते हो तो आप एक्सप्रेशन दे देते हो, लेकिन जब आपको बिना डायलॉग के एक्सप्रेशन देना, वो भी आंखों से बोलना है, ऑडियंस को समझना भी चाहिए और सामने वाले का रिएक्शन भी चाहिए, दैट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर ऑफर हुआ है, वो भी मेरी डेब्यू फिल्म के लिए मराठी इंडस्ट्री में, बिकॉज मुझे हमेशा से मराठी फिल्म करना था, और इस तरीके से शुरुआत होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई गॉट दिस फिल्म। आंखों से बोल के बताएंगे सर आपको इसके लिए एक सीन देना पड़ेगा, वो एक माहौल बनता है, तब जाके अपने आप परफॉर्मेंस निकलता है। आंखों से क्या बोलूँ मैं, सिर्फ गुस्सा दिखा सकता हूँ बस। क्या अगर कभी जो है ये फिल्म अगर हिट होती है तो क्या आप सर नहीं, ये फिल्म तो डेफिनेटली हिट होगी। तो आप चाहेंगे इसका हिंदी वर्जन भी बने? या ये तो मैंने ऑलरेडी उन लोगों को बोला था जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था, तो मैंने बोला आप लोग इसको हिंदी में क्यों नहीं बनाते, इतना माइंड ब्लोइंग क्रेजी कॉन्सेप्ट है ये, इसको हिंदी में बनाइए। पर इन लोगों का था कि नहीं, हम लोगों को मराठी में ही बनाना, वी वांट टू चेंज मराठी सिनेमा। सी कभी भी क्या होता है, हर इंडस्ट्री में एक शुरुआत करना ज़रूरी होता है, और जो शुरुआत करता है वो अमर होता है, वो फिर उसको हमेशा लोग याद रखते हैं कि ये फिल्म ने शुरुआत किया था इस चीज़ से। तो ये मराठी में इन लोगों को शुरुआत करना है, किसी एक अलग तरीके की लव स्टोरी का सिनेमा स्टार्ट करना है, इसीलिए इन लोगों ने मराठी में सोचा इसको बनाने के लिए। एंड मैं तो चाहता हूँ कि हिंदी में बने। लेट्स सी, अगर फिल्म जैसा इन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वैसी बनेगी इंशाल्लाह, तो शायद इन लोग इसको रीमेक करने की बात तो चल रही है मराठी की हिंदी में इसको। क्या कभी अगर मौका मिला आपको हिंदी फिल्म में काम करने का? अच्छा या डेफिनेटली हर रीजनल मूवी का जो भी एक्टर है, आई थिंक उसका फाइनल डेस्टिनेशन मराठी कोई भी इंडस्ट्री का फाइनल डेस्टिनेशन हिंदी फिल्म ही होता है, भले वो साउथ की हो या फिर मराठी हो, बंगाली हो, कोई भी हो। उसको बॉलीवुड में डेब्यू किया मतलब वो सक्सेस हो गया, तो मेरा भी डेफिनेटली है। और एंड आई गेस आई वुड लव टू डू नेगेटिव कैरेक्टर इन बॉलीवुड ऑल्सो, बिकॉज ये एक ऐसे वो कैरेक्टर होते हैं जहाँ पर करने को बहुत कुछ होता है, यू नो, यू कैन एक्ट, यू कैन डू वट एवर यू वांट, बट हाँ आई वांट टू डू जो कैरेक्टर मैं इस फिल्म में पोर्ट्रे कर रहा हूँ, मुझे वैसा कुछ बॉलीवुड में भी करना है, ताकि वो एक डिफरेंट आ जाए बॉलीवुड में भी। हाँ, तो सर्वमंगल सावधान फिल्म में मेरा कैरेक्टर है एसीपी का, प्राजक्ता एसीपी, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने मिलेगा। बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत कुछ करने मिल रहा है, फाइट स्टंट सीखने मिल रहे हैं, बुलेट चलाना सीखा है मैंने, और बहुत वो सब कुछ जो एक मेल पुलिस ऑफिसर करता है वैसा हेडस्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेरा, जो मेरे पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग है। मैं बहुत ही हंसी मजाक दैट काइंड ऑफ लड़की हूँ। बट रोमांस भी फिल्म में करेंगी या नहीं, रोमांस जैसा तो कुछ है नहीं, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है मेरी वजह से फिल्म में, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा शायद कि थोड़ा सा मे बी हीरो के साथ, लेकिन वो आप देखेंगे आपको पता चलेगा। राकेश के साथ, मंदिरी के साथ, हाँ सबके साथ, हाँ ऑसम, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी टीम है, सब मस्तीफुल टीम है, कोई भी आपको बोरिंग सा नहीं लगेगा, सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत मज़ा आने वाला है काम करने के लिए। किस तरह की फिल्म में कुछ आप अपने शब्दों में अगर बयान करना चाहें? ये फिल्म एक वर्ड में तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन कंप्लीट पैकेज है, इसमें इमोशंस है, सीरियस, सेंटिमेंट्स, कॉमेडी, ड्रामा, इसको एक लाइन में नहीं बोल सकते। इट्स नॉट ओनली अ लव स्टोरी, इट इज़ अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग,
सब कुछ देखने मिलेगा आपको इस फिल्म में, सब कुछ। तो क्या अगर ये फिल्म हिट होती है तो आप चाहेंगे कि ये हिंदी में डेफिनेटली बननी ही चाहिए, आई थिंक बननी ही चाहिए। और मराठी फिल्मों का स्तर इतना बढ़ गया है कि हिंदी फिल्मों के एक्टर जो है मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मराठी फिल्मों की स्टोरी बहुत ही रिलेट करती है नॉर्मल पब्लिक से, नॉर्मल ऑडियंस से, क्योंकि वो लोग ग्लैमर और शो ऑफ से ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ों को, जो कि ऑडियंस को सच में नज़दीक लाता है मराठी फिल्मों से। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है कि लोगों को पसंद आता है, और डेफिनेटली बननी चाहिए हिंदी में। आई एम श्योर हिंदी क्या सारी लैंग्वेज में बना दो, साउथ हिंदी। थैंक यू सो मच।